الحمدللہ رب العالمین محمد آل تاجران سندھ اتحاد. ہیلو چیئرمین کراچی جنرل بک سیلر ایسوسیشن. آج کا جو ہمارا پریس کلب پہ احتجاج کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر کے خلاف جو ان کی اجارہ داری ہے اور جو منمانیاں وہ کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف ہم یہاں پر پریس کلب میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر جو کہ خود لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں ان کے ملازمین ہوتے ہیں اور ملازمین اکثر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ خود 2 نمبر کتابیں فروخت کرتے ہیں دکانداروں کو، بک سیلروں کو، ناظم آباد جا کر، گلشن جا کے، ڈیفینس جا کے. اب جب مالکان کو پتہ چلتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمارے دکاندار جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں. پھر ان کو تھریٹ دی جاتی ہے پبلشر کی طرف سے کہ ہم آپ کو، اور لیگل نوٹس بھی کرائے جاتے ہیں. پھر یہ کرایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 40 دکانداروں کے نام ہیں اور ان کے نوٹس تیار ہیں یا آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے کہ جن کا نام لے کر وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں، تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ. تو اس کی ہم کو جو مذمت کرتے ہیں اور ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر جو ہے ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس کام کو جو ہے وہ بند کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر کا جو ہے ان کی کتابوں کا بائیکاٹ کریں. دکاندار جو متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اب میں کہنا چاہوں گا سلیمان جوانی جو ہمارے اردو بازار کے جنرل سیکرٹری ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنا. السلام علیکم. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر ہے جو ہمارا اردو بازار کا لاہور کا ہے، ان کی کتابیں چھاپنے کا نہ ہمیں شوق ہے، نہ کسی کتاب پبلشر کی پائریسی ہو اس کے لیے ہم حق میں نہیں ہے، نہ اس کا ہم اس کے خلاف ہے. مگر ریڈ اینڈ رائٹ پبلشر کے ہمیں جو پتہ چلا کہ ان کے ملازمین ہیں وہی کتابیں مارکیٹوں میں پورے کراچی میں سپلائی کرتے ہیں. ان کے کوئی حافظ نشان نام کا آدمی کا نام آ رہا ہے کہ جو اس میں ملوث ہے، جو ابھی موجود نہیں ہے ان کے ملازمین، اور یہ پورے سپلائی کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ہمارے دکانداروں کو دھمکیاں دینا شروع کی ہے کہ ہم آپ کے خلاف نوٹسز کریں گے. اگر نوٹسز کا آپ نے ہمیں رپلائی نہیں کیا، یعنی نوٹسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں پیسے دو، کیا دو کہ ہمیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں. ایک طریقے سے پتہ پوری نہیں ہوتی جس کو ہم نے پتہ پوری کر رہی ہے، ملازمین کا کام ہے. اور کے مالکان یہ بولتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے مالکان بھی انوالو ہو گئے، اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں کرو ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اور لوگ ظاہر بات ہے چھوٹے دکاندار ہیں، وہ قانونی کارروائی سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ بھائی میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی، میں کیس میں پڑھوں گا، ادھر پڑھوں گا ادھر پڑھوں گا. تو وہ چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بھائی کہ میرا سیدھا کاروبار ہے، چھوٹا موٹا چلے. اب ریڈ اینڈ رائٹ کے جو پبلشر ہے بلکہ ان کے مالکان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شکایت ہے تو واقعی آپ کی کتابیں اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ پائریٹڈ ہو رہی ہے یا کوئی بھی کوئی وائلیشن کر رہا ہے کاپی رائٹ کی، آپ ہم سے اگر بات کریں، ہم ساتھ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا آپ مل کر حل کریں گے ہم آپ کے ساتھ. اگر آپ کو ملازم یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دھمکیاں دینے کے بعد دکانداروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، صحیح ہے نا، تو ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کا نام اس لسٹ میں سے نکلوا دیں گے. 40-45 بندوں کو انہوں نے لسٹ بنا کر اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو ساتھ تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے کے ہراسمنٹ سے ہر دکاندار پریشان ہوتا ہے. صحیح ہے نا. ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اردو بازار کے لوگ قدیم مارکیٹ ہے اور یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہاں پر نئی کتابیں پرانی کتابیں سب مل جائیں گے. اب یہ پرانی کتابوں کی جو ہوتی ہے نا، جو آدمی جو معلومات بیچ کر جاتے ہیں مارکیٹوں میں کے اندر، یہ ان کو بھی پائریسی میں لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ دکان پر آتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بیچو آپ، کہ یہ پرانی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، اس کے بعد میں کو سستی کتابیں چاہیے ہوتی ہے. وہ بولتا ہے کہ 2000 کی کتاب ہے، 1000 روپے میں مجھے ملے آدھی کی قیمت کے اندر.
इससे भी कम कीमत में उर्दू बाजार में किताबें आपको मालूम है मिल जाती है। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि आप भी बैठे हुए आपकी भी बच्ची हो कि आप उर्दू बाजार आए होंगे किताबें लेने के लिए, कोशिश करते होंगे कि महंगी किताब तो आपको भी सस्ती किताबें मिल जाए। तो उर्दू बाजार तो भाई रह गया काम है सस्ती किताबों को बेचने के लिए। इसके अलावा आपको मालूम है उर्दू बाजार का कोई अपना कारोबार नहीं है। उर्दू बाजार का जितना भी कारोबार था वो तो पूरा खत्म कर दिया गया है, क्योंकि तमाम स्कूलों ने तमाम कॉलेजेस ने अपने स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर किताबें बेचना शुरू कर दी है, कॉपियां बनाकर बेचना शुरू कर दी है, रजिस्टर बनाकर बेचना शुरू कर दी है, यहाँ तक स्टेशनरी भी बेचना शुरू कर दी है। तो उर्दू बाजार में तो थोड़ा बहुत जो कारोबार है वो यही है कि जो पुरानी किताबें आती है बिकती है और थोड़ी बहुत हायर एजुकेशन की किताबें वो बिकती है। उसके बाद ये ऊपर से ये पब्लिशर है जिन्होंने अपने मार्केट लिस्टिंग प्रिफरेंस है जो कि नेट से आप भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ कंपाइल किया और इनके कॉपीराइट भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने नाम से एक चीज बनाकर बेच दी मार्केट के अंदर। इस चीज के बराबर की किताबें, इसी की तरीके की दूसरी किताबें जो आपको 10 इयर्स 5 इयर्स ओल्ड पेपर जिसको कहते हैं ओ लेवल ए लेवल के आप आधी कीमतों में मार्केट में बेच जाएंगे इनके मुकाबले उनकी लेवल की किताबों के ये बेच रहे। एक तो ये नाजायज मुनाफा ले रहे, दूसरा ऊपर से ये धमकियां दे रहे क्या बोला से कि हम दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुकानदार एक छोटा सा दुकानदार है जो रोजाना सुबह आता है अपना नशा निकालता है और चले जाता है, वो कहाँ कानूनी चक्रों में पड़ेगा, ना किस कबाड़ों में पड़ेगा, ना किसी जगह में पड़ेगा। तो आप सबसे अलावा से दरखास्त करते हैं कि रीजनल बैंक कमिश्नर के जो मुलाजिम जो यहाँ पर ये गुंडागर्दी मचाई हुई है इन्होंने और धमकियां दुकानदारों को लगाई हुई उसको खत्म करें और इस मसले का कोई हल निकालें। हम मार्केट वाले रीजनल बैंक कमिश्नर के साथ भी ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर हकीकत में इनके साथ कोई गलत काम हो रहा है, इनकी किताबें अगर किसी ने यहाँ पर बनाकर बेच रहा है तो हमें आकर बताए, हम सब बैठे हुए हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ जाकर उनकी दुकान से उस माल को बराबर भी करेंगे और कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। हम आपको बोलेंगे कि आप कार्रवाई करो, हम आपका साथ देंगे कार्रवाई करने में। मगर ये पीछे से धमकी देना दुकानदारों को कि आपका नाम है आप हमें पैसे दे दो वरना हम आपका नाम अपने एफआईआर में डलवा देंगे, आपके खिलाफ कोर्ट में केस करवा देंगे। तो कहने का मकसद है कि ये इस तरीके की धमकियां देने से कोई काम नहीं चलेगा। तो फिर पता पूरी हो गई इस तरीके से कि अब आ रहे हो दूसरे शहर में आ रहे हो यहाँ पर धमकियां भी दे रहे हो दुकानदारों को। तो दुकानदार भाई शरीफ है, हम किताबों वाले हैं, ना तो बदमाश है, ना आप कोई गुंडे या कोई गुंडागर्दी उनसे करेंगे, ना उनसे कोई लड़ाई करेंगे जाकर। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे दुकानदारों को बुझाया जाए। हाँ हकीकत में जो भी अगर है इसमें मुनाफे से आप आपके सबूत देख के भाई इसने ये बात की है, ये किताबें हमारी छाप रहा है, हमारी किताबों का हमारे कॉपीराइट के वायलेशन कर रहा है, हम आपके साथ खड़े, हम आपको बोलेगा खुले उनके खिलाफ कार्रवाई करें भाई, जितनी कार्रवाई आपको करनी करें, हम उसके साथ भी नहीं देंगे। मगर जो बेचारा मुलविस नहीं है, जिनका ना तो कोई लेना है ना देना है जिस काम से उसको भी मुलविस किया जा रहा है, उनको भी धमकियां दी जा रही है। देख रहे कि भाई पैसे वाला है, पैसे वाला बड़ा दुकानदार है, बड़ा सेलर है, उनको धमकियां दी जा रही है। तो उनसे बोला जा रहा है कि भाई हमें पैसे दे दो, आपका नाम लिस्ट से निकाल देंगे। ये मुलाजिमों का काम है, हम बोलते मालिकों का काम है, रिटेल बैंक वालों का सिर्फ इनके मुलाजिमों का काम है। इसके मालिक को भी हम कहते हैं कि आप भी थोड़ा ये हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो आप सुने और आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। हमारी ना तो आपसे कोई दुश्मनी है ना कोई हमारी आपसे कोई नाराजगी है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत के साथ आप भी खड़े हो जाए। आज आपके साथ कल 99% किसी और के साथ भी होगा ये मसला, आपके साथ भी कोई ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए ये किताबें आपकी भी नहीं है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको कंपाइल करके फोटोकॉपी करके या प्रिंट करके जो भी करके आप बेच रहे हो या आपकी अपनी किताबें नहीं है, आपने किसी राइटर्स की किताबें लिखवाई है, आपने भी इसी तरह कंपाइल किया। इसी तरह 100 पब्लिशरों ने पास पेपर कंपाइल करके यहाँ पर मार्केट में बेच रहे अपने अपने नामों से। तो कहने का मकसद है कि इसमें कोई है नहीं, आपका कोई आपने सिर्फ इतना किया हुआ है कि आप स्कूलों के अंदर जाकर अपने ताल्लुकात लगाकर या कुछ भी करके, हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोई रिश्वत ली है या कोई लालच दिया है, आपने कोई भी तरीका अपनाया है, आप अपनी किताबें वहां पर लगवा लीजिए। अब क्या है स्टूडेंट को लिस्ट में नाम लिखा हुआ है कि रीडर राइट की किताबें लेकर आओ। अब बच्चा मजबूर होता है कि वो रीडर राइट की किताब से लाता है, क्या लाता है वो रीडर राइट की मांग रहा है, दूसरे पब्लिशर की नहीं मांग रहा है। तो उसी चीज की यानी उसी आदमी के ऊपर किताबें मौजूद है मार्केट के अंदर, मगर वो बच्चा क्यों नहीं रहता उसका स्कूल से उसको ऑर्डर है या उसको कहीं से भी ऑर्डर दिया जाता है कि रीडर राइट पढ़ना है आपको। ऐसे सर पब्लिशर जो इस तरह की किताबें बनाने की कोशिश, तो कहने का मकसद है कि आप नाजायज मुनाफा खोरी कर रहे हो, वो चलो बर्दाश्त है भाई, हमें
किताब बेचने के लिए मिलती है नहीं मिलती है उससे मसला नहीं है। कहने का मकसद है कि गुंडागर्दी नहीं करे आप उनसे प्यार से बात करें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आपकी जायज शिकायत है उसको हल करेंगे। अब हल नहीं करें उसके बाद आप धमकियां दें, आपके मुनासिब आप अपने मुलाजिम पे नजर रखें। हमारे पास जो नाम मौजूद है आया है निशान नाम का लड़का है तो इनका ही अपने मुलाजिम था या इनका कारिंदा था क्या था वही मार्केट में ये किताबें बेचता था। और इसके अलावा पुरानी जो किताबें है ना जो पुरानी किताबें जो स्टूडेंट बेच कर जाते हैं यानी कि माँ बाप बेच ले जाते उससे वो नई किताबें लेकर जाते तो वो पुरानी किताबों को भी ये बोलते हैं कि पायरेसी में। अब क्या करें जो पुरानी किताबें नाम लिखा हुआ है जिसमें जिसने तारीख का लाया हुआ है तो बेच कर जा रहा है अब उस किताबों पर याद डाले कि ये भी नहीं बेचो तो ऐसा तो कोई चलता नहीं है भाई। वो बेचारा आदमी उसने माल खरीदा है ना आप बोल दो कि भाई कि ये उसमें भी पेपर पुराने होते हैं मिसाल के तौर पर 2024 चल रहा है तो पुरानी बेचना चाह रहे हैं तो 2024 की नहीं बेचना वो 2020 के 22 के पेपर है वो बेचने चले जाता है एक दो साल में वो कंपाइल करके उसमें डाल देते हैं तो कहते हैं जी तो कहने का मकसद है कि बस इतनी से हमारी गुजारिश है तो थोड़ा मैदान में सेक्रेटरी जैसे कि हमारे मुद्दे ने बता दिया है बिल्कुल उनसे मुस्तफ़ सियाको सबक से तो आप आगाह हुए हैं। एक पॉइंट में मैं रोशनी डालना चाहूँगा रीड राइट पब्लिकेशंस उनका जो तरीका कार है कि वो पर्सनली जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा जो कि वो पर्सनली अटेम्प्ट कर कर बुक सेलर्स को चेक करना माल अपने साथ उनका उठाकर ले जाना सबसे बड़ा उनका जो फेल कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनको चाहिए कि अगर कोई इनसे शिकायत है तो एसोसिएशन है या मुताल्लिका इदारे हैं अब मुताल्लिका हमारे जो मौजूद इदारे हैं उनको भी मिस हैंडलिंग कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या गाइड किया है जो वो इस तरीके से नोटिस जारी कर रहे हैं जैसे हमारे एक साथी और भी है फारूकी साहब करके इनको भी नोटिस आया जबकि ये मेडिकल का काम करते हैं। अब इनका इस कैम्ब्रिज की और जो दर्सी किताबों से कोई कंसर्न नहीं है लेकिन इनको भी नोटिस आया उसकी क्या वजह है ये आगे पता चलेगा। तो लिहाजा मेरी जो गुजारिश है कि तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे बैठे हैं रिपोर्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जो प्रेस रिलीज का मौका हमारा ये है कि इनकी इस इजारादारी को इनकी फरमाइशी बयान जो दिलवाए जा रहे हैं उसको और इनकी पर्सनली अटेम्प्ट करने की इस कार्रवाई को रोका जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपने कोई अदालती कानूनी चाराजोई की है या किसी इदारे से सरकारी इदारे से नेब से या दूसरे से हेल्प ली है या नहीं इस सिलसिले में क्योंकि वो कर रहे हैं तो आप भी कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और इसके लिए हम अपना लाहे अमल बना रहे हैं इसलिए कि ये पहले तो थे तकरीबन हम इनको लिख रहे थे लेकिन 1-1.5 महीने से कुछ ज़्यादा मतलब इन्होंने वो करा है तो हम इसका लाहे अमल बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। साहब ये देखिए तौर पे जो हम बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखते हैं अपनी मार्केटों में और लोकल पब्लिशर खास तौर पे उसके हम कॉपीराइट नहीं होते देते और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहे। रहा कैम्ब्रिज का तो कैम्ब्रिज के ऊपर जो है कॉपीराइट इस हद तक होती है कि सिर्फ उसको फोटोकॉपी की सूरत में प्रिंटिंग के अंदर कोई नहीं करता फोटोकॉपी की सूरत में 2-4 किताबें बन गई तो उसे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा रीडर राइट का ये है कि ये पब्लिशर हैं लेकिन ये मार्केटिंग स्कीम है नेट पे उठाया हुआ है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में 20 लोग बना रहे हैं मैं भी अगर चाहूँ तो अपने नाम से बनाकर भेज दूँ तो कोई वो उसमें मुजाहिदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे अगर इनकी हरदर्मी यही रही तो हम इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पायरेटेड जो है ना ज़्यादातर बुक्स वो पायरेटेड होती हैं जिनकी कीमतें आसमान को छूती हैं जिसमें लगता है कि एक किताब के ऊपर इतने मिल रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये का मार्जिन 3-3 हज़ार रुपये का आवाम के ऊपर बोझ तलबा के ऊपर बोझ ये इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे ऊपर। ये होना चाहिए हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि इसका चेक एंड बैलेंस करें कि एक किताब की कीमत क्या आ गई है। ब्लैक एंड वाइट किताब की कीमत भी जो है वो हज़ारों रुपये में आ रही है। ये तलबा के ऊपर भी एक ज़्यादती है कि अगर कोई गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ पाएगा
कि इतनी महंगी बुक्स है, इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसमें एक बात और है कि इनका जो ये इशू इन्होंने उठाया है, इसकी असल बेसिक वजह ये है कि इनका जो बिजनेस है वो पिछले 2 माह से 10 टाइम मल्टीपल हो गया, क्योंकि इनकी चंद लाख रुपए की सेल कराची में होती थी। जब से इनकी कार्रवाई इन्होंने एक एजेंसी दी और उस पर हमने पूरे इलाके में, पूरे उर्दू बाजार में रोकथाम की कि इनकी पायरेसी ना हो, तो इनकी करोड़ों में सेल चली गई। तो ये शायद मिस हैंडलिंग इस वजह से कर रहे हैं कि इनका जो ब्रीडिंग इनकी कॉर्पोरेट है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया है। तो अब ये चाह रहे हैं कि मजीद कुछ ऐसा लग रहा है तो कि हमें और बिजनेस मिले, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ बोलो। अभी आप बता देंगे ये वही साहब आपने आज उठाया जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने बताया कि यूं अभी तक नहीं करा कि अंदर का जो मवाद है वो इन्होंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है, उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। वो अनसॉल्व होता है, इसको सॉल्व किया हुआ है इन्होंने टीचर्स बिठा के अपने, ठीक है। एक होती है कॉपीराइट, बेसिकली क्या होती है कि वो आपकी सोच की कॉपीराइट होती है, आपकी जो तख्लीक है, आपकी जो इन्वेंशन है उसकी कॉपीराइट होती है। ये इनकी इन्वेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने नेट से डाउनलोड करके इसमें मेहनत की हुई है, इसको सॉल्व किया हुआ है। दूसरा ये कि रीड एंड राइट पब्लिकेशन, ये इन्होंने रजिस्टर्ड किया है, बिल्कुल नाम इनका रजिस्टर्ड है, अंदर का मवाद इनका रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब इस काज को भी उठाया जाएगा, जैसे कि आपने रोशनी डाली, तो इंशाल्लाह इस पे भी अब कार्रवाई होगी आगे। थैंक यू। एक किताब पे 1000 रुपए, एक किताब पे नई लिस्ट आ जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस इनकी जब मर्जी आएगी ये एक किताब के ऊपर 1000 रुपए, 500 रुपए खुद बढ़ा देते हैं, प्राइस लिस्ट आ गई। एक भी रेड एंड राइट की किताब के ऊपर प्राइजेस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इस पे भी तवज्जो दो। एक सबसे बड़ा दुकानदारों को ये भी मसला है कि ये प्राइस बुक के ऊपर प्रिंट नहीं होती, इनकी लिस्ट। ये दुकानदार का छोटा सा कपड़ी बुक सेंटर वो कर नहीं स्लीपर ने जैसा कहा कि बिल्कुल सही कहा कि जी ये पास पेपर्स होते हैं ऑनलाइन, इसको कोई भी कॉपी करके बना सकता है, किसी का भी नाम लगा दे, कोई मसला नहीं होता इसमें। कोई ये बोले कि हमारी ये जानकारी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। CI के पास पेपर है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के, ये ऑनलाइन होते हैं, स्टूडेंट खुद भी निकाल के इसको फोटोकॉपी बना सकता है, इसकी परमिशन है, कोई भी बना सकता है, इसका कोई कॉपीराइट होता ही नहीं। तो ये रीडन राइट ने अपने नाम से बना के अपना कॉपीराइट बना लिया, जबकि इसका कॉपीराइट कोई है ही नहीं, कोई भी कैसे भी इसको बना सकता है, कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इनकी प्राइसेस भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने नाम से फोटोकॉपियाँ बना के बेची, आधी कीमत में मिल जाती है मार्केट में। स्टूडेंट को क्या चाहिए, सहूलियत चाहिए, इतनी महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है। तो ये मसला है, इन्होंने अपनी एक तो बदमाशी लगाई हुई है, एक मखसूस इदारे को इन्होंने नाम दे दिए सब दुकानदारों के, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई हैं, उनका लेटर भिजवाते हैं उनसे, बोलते हैं कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुकानदार को उठा के लेके जाते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो मतलब फिर एक बदमाशी लगाई है, किसी किस्म का कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोगों का मौक़िफ़ यही है कि जी जो भी इनको मसला है उर्दू बाज़ार एसोसिएशन से रब्ता करें, जो भी इनका मामला है वो बैठ के दे पाएगा, और जो भी है, जो भी दुकानदार मुलविस होगा उसको वार्न किया जाएगा। पहले तरीका होता है कि वार्न किया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। इन्होंने किसी को कोई किसी किस्म का वार्न नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन दी इदारे के अंदर, दुकानदारों के नाम दिए, उनको हरासा किया, उनसे पैसे लेके छोड़ दिया उनको। तो ये ऐसा होता नहीं, ये खुली बदमाशी है। तो हम लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जो भी इनके मामला थे उर्दू बाज़ार एसोसिएशन में आए, तो वहाँ के आके बैठ के मामला तय करें। शुक्रिया। एकदम पटरी से उतर गए ये,
और हमने इनकी जो है आज से 4 महीने पहले इन्होंने जब अपना ऑफिस का इफ्तिताह किया था तो इनका इफ्तिताह मैंने किया था। तो आज तक इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं किया। अब ये मुख्तलिफ इदारों में जाके कंप्लेन करते हैं या इनके जो लोग यहाँ पर बिठाए हुए हैं वो करते हैं। उसमें एक जी इसाक अय्यूबी साहब हैं, मिनाज साहब हैं, जो ये लोगों की दुकानों में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, उनका माल चेक करते हैं और फिर अगर कोई किताबें बरामद हो जाती हैं तो उन्हें हरासमेंट करते हैं। ये मालिकों को नहीं बताते। जब उनसे पैदागिरी हो जाती है तो मालिकों को नहीं बताते, जब पैदागिरी नहीं होती तो मालिकान को बताते हैं। सर एक दुकानदार जो डिफेंस में उससे 75,000 रुपये लिए हैं, दूसरा दुकानदार है उससे 40,000 लिए हैं और अभी तकरीबन 8 से 10 नोटिस आए हुए हैं। तो उनको ये अपने पास बुला रहे हैं और अगर उनसे डीलिंग नहीं हुई तो फिर ये मुतल्लिका इदारों में उनका केस दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिर्फ अपने मौजूद इदारों से ताउन की अपील है कि ये रीड एंड राइट जो पब्लिशर है इनके ऊपर देख ले आप, और रीड एंड राइट के जो मालिकान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ देख ले हमारे साथ दुकानदारों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको आप देखें। आपकी अगर कोई जायज़ शिकायत है, आपकी कॉपीराइट की अगर कोई वायलेशन हो रही है, कॉपीराइट की तो वैसे वायलेशन हो रही है नहीं, आपके ट्रेडमार्क की वायलेशन हो रही है कि आपका नाम इस्तेमाल आप करके फ़ोटोकॉपी की जा रही है, अब हमें बताएं। जो दुकानदार ये कर रहा है उसके साथ हम भी नहीं खड़े रहेंगे, हम भी उस दुकानदार के मुखालिफ है समझ लें। हम उसका कोई साथ नहीं देंगे, ना उसके कोई सपोर्ट में आपके पास आएगी। मगर जो बेगुनाह दुकानदार है जिनको आपके मुलाजिम जो यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे पास 40 आदमी 50 आदमी की लिस्ट है, अगर आपने हमें हमारे साथ ताउन नहीं किया माली तौर पर ये तो हम उनका नाम FIR कटवा देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो डरे हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि उनको डराने से बेहतर है कि आप हमसे बात करें, जो भी आपका मसला है आप हल करें और अपने मुलाजिमिन पर भी नज़र रखें।